आप माउथ पीस थोड़ा पास में रखेंगे, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर मैं ये बोल रहा था सर, आपके जो लेक्चर्स है ना रिकॉर्डेड, मैं सर उनको मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा। अच्छा ठीक है ना, वो हम क्लास में बात कर लेंगे। अभी तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा क्लास है उस पर फोकस करो। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल going to discuss conversion between different number systems and also the binary arithmetic, because it is very important. So let us solve the problem for 652.8. Okay, so 652.8, and our conversion is from 652.8 to x16 and x2 and x10. So let us see. 652.8 is written like this. This is our problem, and what we need to solve, x2, x16 and x10. Okay, so before going to solve this problem, let us see what is the equivalent of all these numbers. So let me write binary numbers first. 0 0 0 0 and 1 1 1 1, then 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1. This is for binary. Okay, and this is 0 1 2 3 4 5 6 and 7. So if you want to convert to this number also, you need to step 1, clear? Step 1, convert the octal number into binary from octal table. So what is written here? 652. 652. I am not solving parallelly. I am going to solve it downwards. So what is the equivalent to 6? This is 110. 5 is 101 and 2 is 001. यदि आप यहाँ पर इस टेबल से एक्सेस करेंगे तो ये सारी वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी. ओके, so this is in equivalent binary. Now yes, huh? Yes, 2 is Sir, equivalent the two is Two is 0 1 2. correct. Exactly, I had written purposely whether you know or not, whether you understand the concept or not. So this is 010. Okay, clear? Now step 2. This is our problem 1. Okay, so let us now come to problem 2. Conversion from octal to hex. Step 1, get equivalent binary number. Okay, so get equivalent binary number from octal table. So what is that? This is 110, 101 and 010. Okay, now make 4 set and write equivalent hexadecimal number from hexadecimal table. Okay, so hexadecimal table आप लोग के पास कॉपी में बना हुआ है. I am not or let me create one table for you. So here it is much better. 0 0 0 0
4 times 8 times 0 actually, and 8 times 1. Now 4 times 0, 4 times 1, then 2 times 0, 2 times 1, 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 and then 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, and 0, 1. And this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, and F. Okay. So what is our number? 110, 101, and 010. Make 4 set from right. Okay. From right hand side. So this is first set. This is second set. So now after setting 0001, 1010, and 1010. So answer is this is applying 4 set. Okay, applying 4 set. So now answer is what? It is your A. This is also A, and this is 1. 1AA base 16 is your answer. And now finally the problem number 3 is x8 to x10. So what is our question? 652. We need to convert this into decimal. So put in expansion formula, or expand with respect to expansion formula. So this is 0, this is 1, and this is 2. So 6 multiplied by 8 to the power 2 plus 5 multiplied by 8 plus 2, okay, or 8 to the power 1 and 2 multiplied by 8 to the power 0, because 8 to the power 0 is ultimately 1. That's why not an issue. And this is 40. This is 40. Okay. And this is 64 multiplied by 6. So what is the answer? 384 plus 40 plus 2. This will give you 426. 426? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, there is no question of cross validating each and everything, but we can cross validate with hexadecimal. So कम से कम एक नंबर सिस्टम के साथ आप क्रॉस वैलिडेट कर दो. Let us आप सेकंड वाली प्रॉब्लम के साथ करना सर. हैं सर सेकंड वाली प्रॉब्लम के साथ करना 1AA 16 के साथ. ये वाली प्रॉब्लम. हाँ इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन करना सर. क्रॉस वेरिफिकेशन हम ये 16 हेक्साडेसिमल इससे वैलिडेट करेंगे. इसका एक्सपेंशन ओके करने सर. पर यदि सेम आंसर आ गया डेसिमल का, इसका मतलब सही है. ठीक ठीक सर. कम से कम कोई भी एक नंबर सिस्टम आप, कम से कम 2 नंबर सिस्टम को आप वैलिडेट कर दो. तो यहाँ डेसिमल निकल गया. हम जानते हैं कि डेसिमल क्या होता है, इसलिए हम डेसिमल से ही वैलिडेट करेंगे. ओके, लेट अस क्रॉस वैलिडेट विथ हेक्साडेसिमल नंबर. सो ये आपके पास आ गया 1AA 16. अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए 0 1 2 एंड देन 1 into 16 to the power 2 plus 10 into 16 plus 10 into 16 to the power 0. Okay, because equivalent to A is 10. Okay, equivalent to A is 10.
11, 12, 13, 14। जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो a से तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। सो दिस विल गिव यू 256 प्लस 160 प्लस 16। तो कितना आ गया ये आंसर आपका? 6 प्लस 6 12। वो प्लस 10 आएगा, प्लस Oh yes, plus 10, correct. So this is 6, then 5, 6, 11, 11, 1, 12. Okay. 436 Then sir. 2, 1, 3 and 4, 26. It means answer is correct. And the final step, okay. This is your validated. Validated लिखेंगे. Validated what? This is base 10. Okay, base 10. So validated means base 10 with base 10 is validated. So the final answer is नंबर 1। यदि आपको यहाँ पर ABC लिखा है, 1A, 1B और 1C लिखा है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा A equals to 652 8, A equals to नहीं, A then dot 652 8 equals to जो बाइनरी में आपने निकाला है ना, 110 101 010 इन बाइनरी। देन B में आप लिखेंगे आपने क्या निकाला, हेक्साडेसिमल, सो दिस इज 1AA 16। ओके, और C में आप लिखेंगे 426 10। और इसके पहले 652 8 भी लिखना है ना, क्योंकि ये यहाँ पर अभी रेंडरिंग अच्छी नहीं मिल रही है, तो मैं आपको बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसको यहाँ से वहां पर शिफ्ट करता हूँ। तो समझ में आ गया ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है? Yes sir. Yes, sir. ओके। क्या है, मॉड्यूल 1 की स्लाइड में बहुत सारे वीडियोस हैं, वो बहुत हैवी हो गई है स्लाइड, है ना, इसलिए डू यू वांट टू डोंट सेव। So now this is visible to all of you, okay, clearly visible to all of you, and this is our number system slides. तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर है। अब कोई और प्रॉब्लम आप लोगों को समझना है कि आप कर लेंगे खुद से, या सेकंड प्रॉब्लम समझाना है आपको?
सेकंड My प्रॉब्लम screen is बता रहे हैं not सर। visible. हाँ, स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर, Oh, स्क्रीन नहीं screen is विजिबल not हो रही visible. सर। screen is not visible. Now it is visible. Yes. Yes, Okay. sir. Yes, sir. So तो अब सेकंड आपको वाली ये और करवा दीजिए हाँ सर सेकंड वाली और करवा दो सर। सर हम्म सर एक बार सर जो लास्ट स्लाइड थी सर उसमें थोड़ा सा डाउट। यहाँ यस सर। इस स्लाइड में नहीं सर, जो जो सर अपन अभी करा ना जस्ट हाँ ये वाला सर। हाँ सर इसमें ये सर 16 सर कैसे लिया सर अपन ने, ये 1AA 16 सर क्वेश्चन। ये यस सर। ये इस टेबल से लिया, इस टेबल में लिखा ना, इसके 4 सेट बनाए हमने। ये देखो ये 4 सेट बनाए, ठीक है, राइट से। तो 0 1 0 1 ये लिखा 0 1 0 1, ठीक। इसके बाद फिर 0 1 0 1 ये 0 1 0 1, ठीक है, ये राइट से मैं पढ़ रहा हूँ। एंड लास्ट इज ये अकेला 1 बचा तो 0 0 0 1। जब आप यहाँ देखते हो 0 0 1 इज इक्विवेलेंट टू 1 एंड 1 0 1 0 इज इक्विवेलेंट टू A एंड 1 0 1 0 इज इक्विवेलेंट टू A। बस ये टेबल क्यों बना रहे हैं हम, इसलिए तो बना रहे हैं कि आप कर सको पूरा। क्लियर? सर ये बाहर 16 कैसे आया सर, ये समझ में नहीं आया सर बस। कहाँ 16 कैसे आ गया यहाँ? ये वाला सर, हाँ सर। आप कब से क्लास कर रहे हो? सर लगभग अक्टूबर से। कब से? सर लगभग 28 से या 21 से। 28 ऑफ सितंबर से। यस सर। ओके, ये क्या है, आपको वीडियो देखने की जरूरत है ना? तो ये पूरे वीडियो में ये 16 क्यों लिखा है, ये बेस है। बेस मतलब एक नंबर सिस्टम है। ये यदि आप 28 से अटेंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैंने समझाया फर्स्ट स्लाइड में, वेरी फर्स्ट स्लाइड में, कि कैसे हम यहाँ पर बेस 16 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो लिखा हुआ है। बेस 8 लिखा है, ऑक्टेल का बेस 8। तो यहाँ आपको 16 में तो डाउट आया, पर 8 में डाउट नहीं आया कि यहाँ 8 क्यों लिखा हमने, ये 8 क्यों लिखा, ये 8। ये सर यहाँ पे है ना? तो ये डाउट अभी इस क्लास में तो मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा। इसको क्लियर करने के लिए आप वीडियो देखिए और फिर आप अलग से जो रेगुलर क्लास है वहां पर पूछिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, 5 स्लाइड पहले की बात हो गई, यानी 5 आवर्स पहले ही स्किप हो चुके हैं, है ना? तो आपको शुरू से मैं वीडियो की लिंक मैंने उसमें डाला हुआ है रिवीजन के सेक्शन में, आप वहां पर देख लेना। अभी आप समझने की कोशिश करो कि नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये वाली बता रहा हूँ, इसमें आपको शायद समझ में आए। सेकंड प्रॉब्लम है 330, सेकंड प्रॉब्लम है 330। सो we have given 330 base 4 and we need to find x10, x8, x16 and x2. Okay, so cleverly we know that in this particular system, what do you mean by base 10? X4 means it consists of the numbers 0, 1, 2 and 3. Clear? So there is no problem. Let us make binary table for this number system. Okay, so this is 0 0 0 1 1 0 and 1 1. This is our base 4 number system. This number system means better to write, instead of writing this, better to use base 4 number system. तो अभी जिन्होंने भी प्रॉब्लम पूछा था उनके लिए यही है कि दिस इज बेस 4 नंबर सिस्टम। ओके,
In base 4 number system, only 4 numbers are there and no 5 is there. So this using this 4 number, how do you convert the numbers? Okay. So और आपको ये याद रखना है कि जिसमें भी 2 की पावर होती है केवल उसी में ये वाले फॉर्मूले वर्क करते हैं. ओके. सो दिस इज सर इक्वल ये टू कैसे 0. मतलब आपने ये सब बनाई कैसे है सर ये टेबल? क्या चीज? आपने सर ये टेबल कैसे बनाई? मतलब सर कोई भी वैसे याद करने मतलब ये समझ नहीं है कि आप सर अरे आपने कोई ट्रिक से बनाई है या? अरे कोई ट्रिक नहीं है. आप ये सोचो कि यदि नंबर 0 है तो 0 के बाद अगला नंबर क्या होगा? 1 सर और बाइनरी में क्या होता है? बाइनरी में आपके पास क्या क्या चीजें होती है? 0 और 1 0 होता है. 1 तो आप अगला नंबर क्या यस लिख सर पाओगे? 10 लिखोगे 1 के बाद, ठीक क्योंकि ये तो सबसे बड़ा नंबर यस हो गया. सर 10 के बाद क्या यस सर लिखोगे? 11. और कोई दूसरा यस सर तरीका ही नहीं है. आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये 4 के अलावा कोई दूसरा नंबर आएगा ही नहीं 2 बिट में. तो ये कोई ट्रिक ही नहीं है. ये तो मतलब आप कंप्यूटर साइंस में हो ना. यस सर हाँ. तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगी 4th सेमेस्टर तक, खुद याद हो जाएगी. मतलब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा. कोई बड़ी बात नहीं है और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है ना. मैं आपका एक दिन और जितने लोगों की बहुत अलग से नंबर सिस्टम की ये वाली क्लास ले लूंगा. ठीक है. ओके सर Okay, so now first problem is better to use this as first problem. Okay, so let us 334 equals to x2. So conversion is 3 equal to 3 is 1 1, then 3 is 1 1 and then 0 is 0 0. ओके. राइट हैंड साइड पे आपको पूरे दोनों 0 लिखने हैं, सिंगल 0 नहीं लिखना है. लेफ्ट हैंड पे आप अवॉइड कर सकते हो लीडिंग 0, यू कैन अवॉइड. नाउ सेकेंड हम सॉल्व करते हैं इसके लिए ऑक्टल नंबर. ओके. x8 334 equals to x8. So what is our first step? First step is step 1 is obtain binary number. Obtain binary number. Okay. So what is our binary number? 1 1 1 1 0 0. Step 2, make 3 set. Okay. So write the same number 1 1 1 1 0 0. Then step 3 is obtain equivalent octal number. Okay. So what is this? This is our 1 1 1 and 1 0 0. So equivalent octal number is 7 and this is 4. आपके पास टेबल बना हुआ है, उससे चेक कर लेना. Okay. So this is our answer. So this is answer. This is first answer बाइनरी. बट आप किसी भी ऑर्डर में मत कीजिएगा. मैंने यहाँ पर सर करके बताया आपको अलग ऑर्डर में, है ना. आपको उसी ऑर्डर में जाना है. सर आपने सर जो बाइनरी में है सर, वो आपने 5 के नीचे 11 को लिख दिया सर, मतलब 11 को लिख दिया सर. क्या कर दिया मैंने? सर ये आपने बाइनरी नंबर नहीं लिखा सर. 111100 सर, ये बीच वाला मिडिल वाला 11 को लिखा सर. मिडिल वाला 1 1 कहाँ लिखा मैंने? मैंने तो यहीं से उठाया हाँ है ये नंबर. ये जो हाँ इक्विवेलेंट सर वो नंबर आया सॉरी यही तो सर. उठाया है, और कोई नंबर ही नहीं हाँ है. ओके सर. हाँ नहीं सर, सेम मैंने नंबर, थोड़ा सर गलत रीड कर लिया सर, गलत रीड कर सेम लिया, नंबर. सॉरी सर. ठीक है. सेम नंबर है. फाइन. नाउ एक और प्रॉब्लम फॉर, अब हम देख रहे हैं 334 इक्वल्स टू x16 वाली प्रॉब्लम. ठीक है. थर्ड प्रॉब्लम है ये हमारी. तो यहाँ पर हम देख स्टेप 1 इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर. ओके. तो इस टेबल से हमने 3 के इक्विवेलेंट लिखा 1 1, 3 के इक्विवेलेंट लिखा 1 1 और 0 के इक्विवेलेंट लिखा 0 0, और ये हमारा इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आ गया. स्टेप 2 मेक 4 सेट.
4 सेट और पेयर ऑफ 4, ओके 4 सेट। हेक्साडेसिमल के लिए आपके 4 सेट आते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल के लिए आप क्या यूज करते हो, 4 सेट। ये मैंने इस स्लाइड में आप लोगों को बताया हुआ है पहले से ही, आपने किया होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 4 सेट 2 सेट, ठीक है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 4 सेट बनाएंगे। तो फिर से नंबर लिखा 1 1 1 1 0 0। ये हमारे पास आ गया एक सेट और ये आ गया दूसरा सेट। इसमें 2 नंबर ऑफ जीरोस हमने ऐड किए हैं। ये जीरो हमने ऐड किए हैं, ये आए नहीं है, ठीक है। दिस इज 3 एंड दिस इज C in hexadecimal. Clear? And fourth problem. Now come to fourth problem. So let me expand fourth problem here. X10. 334 equals to X10. So this is 0, this is 1 and this is 2. So what we need to do? Obtain using expansion formula. Okay, so 3 into 4 to the power 2 plus 3 into 4 to the power 1 plus 0 into 4 to the power 0. क्या आ गया आपका आंसर? (48) plus 12 plus 0. So what is the answer? 60. है ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So this is our answer in decimal. Okay. Now cross validation. कोई भी एक नंबर सिस्टम उठा लो आप। बाइनरी बड़ा है तो बाइनरी छोड़ दो, आप ये यूज कर लो, ऑक्टल यूज कर लेते हैं। क्रॉस वैलिडेशन यूजिंग ऑक्टल आंसर। ओके, सो व्हाट इज द ऑक्टल आंसर? ऑक्टल आंसर इज 74/8. ओके, एक्सपैंड दिस। तो 0 1 7 into 8 to the power 1. 56. तो यदि आप इसको इक्वेशन नंबर 4 5 कुछ भी लिखते हैं, है ना, इक्वेशन नंबर 5 लिखा है, इक्वेशन नंबर 6, सो इक्वेशन नंबर 5 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 6, hence आंसर obtain answers, hence obtained answers are correct. करेक्ट नहीं, वैलिडेटेड। करेक्ट तो वो टीचर बताएगा ना। एंड फाइनल आंसर, अब आप इसके बाद फाइनल आंसर जरूर लिखेंगे, है ना, ताकि टीचर को पता लगे। तो अब आपका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में लिखना है। तो 334 equals to 60 10. This is your first answer. Second answer is 334 equals to 74/8. This is your second answer. Then third is 334 equals to 16, na? 3C 16. And fourth is your 334 equals to 1 1 1 1 0 0 2. ठीक है, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्लियर है? ये समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग खुद कर लोगे या वो भी बतानी है? जी सर, कर लेंगे सर, हम तो कर लेंगे ना। अब वहां पर देखो, आपको जो इसके पहले वाली प्रॉब्लम है इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। मतलब यदि आप x4 कैलकुलेट करते हो, x5 कैलकुलेट करते हो, तो नो ट्रिक।
विल वर्क। ओके, यहाँ पर आपको सबसे पहली स्टेप x10 पे कन्वर्ट करना है और x10 के बाद फिर मॉड्यूलो 5 डिवीजन करना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आपको कुछ नहीं ट्रिक काम आएगी। ट्रिक ये काम आएगी कि पहले ऑप्टेन बाइनरी नंबर करेंगे, ऑप्टेन बाइनरी नंबर, फिर क्या करेंगे, मेक टू सेट करेंगे। मेक टू सेट करने के बाद राइट इक्विवेलेंट नंबर इन बेस 4। ओके, और यहाँ तो आपको पता ही है कि यहाँ आपको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि ये तो यही नंबर दिया हुआ है, तो द नंबर इज सेम, द आंसर इज सेम एस। ऐसा कभी कभी पूछ सकता है ना, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। और यदि आप चाहें, अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप 1 मेक 4 सेट फ्रॉम हेक्साडेसिमल टेबल। ओके, और इसमें क्या करना है आपको, सीधे आपको ये तो करना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ एक्सपेंशन, यूज द एक्सपेंशन फॉर्मूला। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। अब आप इस तरह से कर लीजिए, ये मैंने यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि 5 और फिर ये रिमाइंडर ऐसे करके सॉल्व करना है। तो दिस इज वन मोर थिंग। तो आज हम एक प्रॉब्लम पर देख लेते हैं, या आज छोड़ दें, कल से देखेंगे। सर एक देख लेते हैं। कल से शुरुआत करते हैं। एक प्रॉब्लम में सिर्फ एडिशन की पर बता रहा हूँ, है ना, यस सर। सिर्फ ऐड Yes, करना पर sir. बता देता हूँ। फिर कल हम सब्ट्रैक्ट करना देखेंगे। नेक्स्ट डे हमारी छुट्टी रहेगी। नेक्स्ट डे यदि आप लोग की इच्छा होगी तो क्लास लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे, है ना। इसके बाद फिर हम ऑल्टरनेट डेज में लेंगे, यानी ट्यूसडे, ऑल्टरनेट नहीं, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रहेगी क्लासेस। ठीक है, जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ये बिल्कुल दिमाग लगाने का भी काम नहीं करना है इसमें, आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगता है इसमें। आप जैसे सोच रहे हो कि कोई स्पेशल ट्रिक है, बिल्कुल स्पेशल ट्रिक नहीं है। एक बार आपको डेसिमल नंबर सिस्टम पता हो, जो आपने बचपन में पढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम अरिथमेटिक हम स्टार्ट कर देते हैं। एडिशन, सपोज आपको एक नंबर दिया है, ठीक है, सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही सर। नहीं हो रही है स्क्रीन विजिबल, कोई बात नहीं। आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। सो सपोज आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है ना। मैं एकदम सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूँ अभी, एकदम सिंपल प्रॉब्लम। सपोज मुझे दिया हुआ है 9 और 9, 9 + 9 कितना होता है, 18 होता है, ये आप लोगों को पता है। 9 नंबर क्या होता है, 1001, और 9 के इक्विवेलेंट 1001। ठीक है, तो ये तो एक स्टेप मैंने बताई, 9 + 9, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्रॉस वैलिडेट कर सको बस। अब ये बाइनरी में लिखा, सर लास्ट 1 आएगा सर सेकंड स्टेप में। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये वाला मैंने जानबूझ के नहीं, ये गलती से हुआ है मेरे से, है ना। तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, अब लेकिन जब आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो और जब आपको पता है कि सिर्फ बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है, ये तो एक रफ प्रॉब्लम हुई, रफ ड्राफ्ट हुई। आपको प्रॉब्लम इस तरह से दी जाएगी, प्रॉब्लम ऐड, और इसके बाद लिखा रहेगा 1001, ऐड द बाइनरी नंबर।
ओके 1 0 0 1। अब आप इसका एडिशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 + 1 क्या होगा? 1 + 1 अगला नंबर क्या होगा? आपको क्या क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो आप जब बाइनरी नंबर लिखते हैं तो 0 के बाद आता 1, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर आता 1 0, ओके, और 1 0 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 1 1। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसके पहले यदि मैं 2 0 लगा देता हूँ तो वो कोडिंग हो जाती है। पर यदि मैं सिंपल बिना जीरो के करूंगा, यहाँ पर आपको कोडिंग नहीं करनी है, यहाँ पर तो आपको एडिशन परफॉर्म करना है। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए आप ऐसे ही करेंगे। या आप सिंपल सी बात करें डेसिमल में, यदि 9 पे पहुंचे हैं तो 9 के बाद 10 आएगा कि नहीं आएगा? और 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, यदि हम डेसिमल यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह से बाइनरी में क्योंकि हमारे पास 2 ही नंबर है तो हम किस तरह से लिखेंगे कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे। तो दिस इज द वे। ओके, तो ये एग्जाम्पल इक्विवेलेंट नहीं है। 1 + 1 क्या होता है? 1 + 1 मीन्स नेक्स्ट नंबर, तो दिस इज 10। 10 का आपने 0 यहाँ लिखा, कैरी का 1 यहाँ लिखा, एंड देन फाइनली this 1 + 0 + 0 is 1, and this 0 + 0 is also 0, and 1 + 1 is 10. Okay, now this is your answer in binary. How do you cross validate this answer? There is no way to cross validate because it is not given to you. If you are intelligent enough and if you are interested to solve this problem, then आप इस स्टेप को परफॉर्म जरूर करें। ओके, इट विल डेफिनेटली एनहेंस योर मार्क्स। सपोज आपको 2 मार्क्स मिलने थे इसमें तो 1.5 ही मिलेंगे। लेकिन आप स्टेप टू क्रॉस वैलिडेशन, और क्रॉस वैलिडेशन जब भी आप करेंगे तो एक आंसर आपका डेसिमल में आना चाहिए। तो क्रॉस वैलिडेशन में आपने इसको लिखा 1001 के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? डेसिमल आप एक्सपेंशन करके निकाल लेना, या मैं यहाँ पर 0 1 2 3 लिख रहा हूँ। सो दिस इज 2 to the power 3 plus 2 to the power 0, मैंने डायरेक्ट ही लिखा है। ओके, सो दिस इज 8 + 1, इट विल गिव यू 9। देन second number is also 9, first number is 9, second number is also 9. Okay, now answer. So answer is what? 1 0 0 1 0 0 1 2 3 4. So this is equals to 2 to the power 4 plus 2 to the power 1. So what is the answer? This is 16 plus 2 is 18. So answer is correct. Answer is validated. ठीक है, clear? Yes, sir. Okay, so with this we finish this lecture, and we will start tomorrow at 8 a.m. Okay, and आप वहां पर, और जिनने भी अभी जिनको ये डाउट आ रहा है कि 8 और 16 कहाँ से लिख रहे हैं, तो वो प्लीज वीडियो को जरूर रेफर करें। आपको सिर्फ कपिल नागवंशी सर्च करना है, या कपिल नागवंशी नहीं भी सर्च करते हैं तो आपका ये रिवीजन क्लास है, ये रिवीजन है। रिवीजन में सारे वीडियो डले हुए हैं, सारे के सारे वीडियो आप ऐसे ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप पहले नंबर का वीडियो जरूर देखें, नंबर सिस्टम जहां से स्टार्ट हुआ है, नंबर सिस्टम 2, एंड दिस इज योर नंबर सिस्टम 1। ओके, यहाँ कहिए ये नंबर सिस्टम 1। आप इसको स्टार्ट करेंगे, ये सब सारे वीडियो आधे घंटे से ज्यादा के नहीं है, तो आप इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है? ओके सर, ओके सर, ओके सर। आप इसको देख लो, बाय नहीं सर। समझ, हाँ यस सर कल भी है क्लास हमारे को? कल भी है बिल्कुल। अभी जब तक क्योंकि आपको पूरा सिंक करना है ना, तो सारी क्लासेस अभी रहेगी। सर नेक्स्ट वीक से आप बता रहे थे ऑल्टरनेट होगी ना?